بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ مسلم شریف۔ مرکز کھائی گلا سے ملحقہ گاؤں کوئیاں مختلف قبائل کا گلدستہ ہے۔ یہاں کے عوام کے اتحاد و اتفاق، فہم و فراست، سماجی خدمات اور سیاسی شعور کی پختگی کی مثالیں دیگر علاقوں میں دی جاتی رہی ہیں۔ سماجی کاموں سے لے کر عوامی تحریکوں تک اس گاؤں کے افراد نے ہمیشہ اپنا مثبت رول ادا کیا۔ ہمارے اکابرین نے معاشرے کی بھلائی اور باہمی تنازعات کے حل میں ہمیشہ حق گوئی اور مصلحت سے پاک کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کوئیاں دیگر ملحقہ گاؤں میں رواداری اور بھائی چارے کی مثال گردانا جاتا ہے۔ گاؤں کوئیاں کے غیور، باشعور، علم و آگہی کے زیور سے آراستہ، جذبہ خدمت انسانیت سے سرشار افراد نے گاؤں کی فلاح و بہبود اور اصلاح معاشرہ اور مختلف تنازعات کو باہمی مشاورت سے حل کرنے اور اتفاق و اتحاد قائم کرنے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت محسوس کی، اور اس تنظیم کے قیام کے لیے عملی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے باہم مشاورت ہوئی اور برادری کو اکٹھا کر کے تنظیم کی اہمیت و افادیت ان کے سامنے رکھی گئی، جس کے بعد اصلاحی کمیٹی کوئیاں کے نام سے ایک تنظیم کا قیام نومبر 2009 میں عمل میں لایا گیا۔ تنظیم کے اغراض و مقاصد و آئین تحریر کیے گئے اور برادری کے سامنے رکھے گئے، جس پر برادری کے موجود تمام افراد نے اغراض و مقاصد اور آئین کی متفقہ طور پر منظوری دی۔ گاؤں کے ہر محلہ اور قبیلے سے ایک ایک فرد کو نمائندگی دی گئی اور 40 اراکین پر مشتمل ایک جنرل کونسل بنائی گئی، جسے برادری نے تمام تر اختیارات تفویض کیے۔ 40 رکنی کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ تنظیم کے صدر سمیت دیگر عہدیداران کا انتخاب عمل میں لائے۔ چونکہ ہر اجلاس میں 40 رکنی کمیٹی کی شمولیت قدر مشکل عمل تھا، اس لیے 40 رکنی کمیٹی نے ہی باہم مشاورت سے 13 رکنی فیصلہ ساز کمیٹی تشکیل دی، جسے جملہ تنازعات کو حل کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا۔ بہت ہی مختصر عرصے میں اصلاحی کمیٹی کوئیاں نے مختلف چھوٹے بڑے تنازعات جو سال ہا سال سے عدالتوں میں زیر کار رہے، وہ باہم مشاورت سے حل کیے، جس کے باعث وہ نہ صرف مرکز کھائی گلا بلکہ ضلع بھر کے لیے ایک مثال بن گئی۔ دیگر گاؤں کے افراد نے بھی اصلاحی کمیٹی کوئیاں کے اغراض و مقاصد کو مشعل راہ بناتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں تنظیمیں بنانے کا فیصلہ کیا اور اصلاحی کمیٹی کوئیاں کے منشور سے استفادہ حاصل کیا۔ سردار محمد نعیم خان اصلاحی کمیٹی کوئیاں کے پہلے صدر نامزد ہوئے اور بزرگ سیاسی و سماجی رہنما سردار رحیم خان کو سرپرست اعلیٰ نامزد کیا گیا، جبکہ دیگر عہدیداران کا چناؤ بھی اتفاق رائے سے کیا گیا۔ پہلی نو منتخب باڈی کی تقریب حلف برداری منعقد کی گئی، جس میں کمشنر پونچھ ڈویژن سردار خورشید خان نے نو منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ تقریب میں ڈی سی پونچھ چودھری رقیب خان، ڈی آئی جی سردار خورشید خان مرحوم، این آر ایس پی کے ڈسٹرکٹ انچارج سردار شبیر اور دیگر سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ اصلاحی کمیٹی کوئیاں کے اب تک رہنے والے صدور کے نام سردار محمد نعیم خان، سردار خالد محمود ایڈوکیٹ، سردار رشید شریف، سردار خالد محمود ایڈوکیٹ، سردار صابر کشمیری ایڈوکیٹ۔ کسی بھی معاشرے میں نوجوانوں کا کردار ہمیشہ اہم رہا ہے۔ اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے گاؤں کوئیاں کے نوجوانوں پر مشتمل یوتھ ویلفیئر کمیٹی کوئیاں کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے بانی صدر قاضی خالد محمود نامزد ہوئے۔ یوتھ ویلفیئر کمیٹی کے اب تک رہنے والے صدور کے نام قاضی خالد محمود، بابر حنیف، تنویر اعظم، گلفراز صدیق، عامر شاہد۔ اصلاحی کمیٹی اور یوتھ ویلفیئر کمیٹی نے اپنے قیام سے لے کر اب تک اپنی بساطت کے مطابق جو کام کیے، اس کی کارکردگی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اصلاحی کمیٹی اور یوتھ ویلفیئر کمیٹی کوئیاں کے اقدامات۔ اصلاحی کمیٹی اور یوتھ کمیٹی نے اپنے قیام کے بعد سب سے پہلے قبرستان کے لیے زمین الگ کی اور قبرستان کے لیے 8 کنال زمین مختص کی۔ جگہ ہمراہ نہ ہونے کی وجہ سے قبر کشائی میں مشکلات کا سامنا تھا،
जिस को हल करने के लिए सारे रकबे को हमवार किया गया। गांव की कदीम ईदगाह जो गर्ल्स कॉलेज की तामीर के बायस खत्म हो चुकी थी और अवाम इलाका को नमाज ईद की अदायगी के लिए जगह न थी, इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए वसी और इस ग्राउंड को बनाया गया, जो आज गांव कोइया के लोगों की ईदगाह और जनाजा गाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। गर्ल्स स्कूल और बॉयज सेकेंडरी स्कूल की जमीन अलग की गई। नीज गर्ल्स स्कूल की अलॉट शुदा जमीन से ज्यादा रकबा स्कूल के लिए रखा, ताकि आने वाले कल डिग्री कॉलेज बनने पर जमीन का मसला न हो। इसके साथ साथ इस्लाही कमेटी ने जो पुरानी बिल्डिंग थी जिसे ठेकेदार गिराना चाहते थे, उसे उस नुक्ता नजर से गिराने से बचाया कि अगर कल गर्ल्स इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज का दर्जा मिल जाता है तो हमारे पास गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग पहले से मौजूद हो। इस तरह कौमी खजाने को बड़े नुकसान से बचाया गया। गांव के 4 मकानात जो हादसाती तौर पर जल कर मुकम्मल तबाह हो गए, इस्लाही कमेटी और यूथ वेलफेयर कमेटी ने मुतल्लिका घरानों की मुश्किलात को देखते हुए हंगामी फंडिंग का ऐलान किया। अंदरूनो बैरूनो रियासत बरादरी के लोगों से माली ताउन की अपील की, जिस पर बरादरी ने भरपूर ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि उनको पहले से बेहतर घर बना कर दिए। मुख्तलिफ अदवार में अवाम इलाका को सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों की टीम ने न सिर्फ तफसीली चेकअप हुआ बल्कि लाखों रुपए मालियत की मुफ्त अद्वियात भी मुहैया की गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इस्लाही कमेटी और यूथ वेलफेयर कमेटी के ताउन से न सिर्फ अहलियान कोइया को सेहत की सहूलियात मुयस्सर हुई, बल्कि हमारे ताउन से बरमंग, नामनोटा, रेडबन, बंजोसा, अब्बासपुर, तीतरी नोट और तराड़खोल की आवाम को भी ये सहूलियात मुहैया की गयी। बैरूनी मुमालिक गाँव के अफराद को एक प्लेटफार्म पर मुतहिद करने के लिए कोइया ओवरसीज वेलफेयर का क़याम अमल में लाया गया, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर मौका पर अपने लोगों की मुश्किलातों परेशानियों में पेश रहती है। वेलफेयर के क़याम की वजह से बैरूनी मुमालिक गाँव कोइया के अफराद एक दूसरे के साथ मुकम्मल राब्ते में रहते हैं, परदेश में एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं और एक दूसरे की गमियों खुशी को महसूस करते हुए बाहम जुड़क के साथ रहते हैं। महंगाई के दौर में गांव कोइया के लोगों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आने जाने के लिए भारी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते थे। इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इस्लाही कमेटी और यूथ वेलफेयर कमेटी ने महसूस किया कि गांव कोइया के लिए अपनी एम्बुलेंस होनी चाहिए, जिस पर गांव कोइया के तमाम लोगों से राब्ता किया गया और गांव कोइया के लोगों के ताउन से एम्बुलेंस ली गई, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह खाई गला मरकज के लिए एक नेमत से कम नहीं। एम्बुलेंस में तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। मनशियात इंसानी जिंदगी के लिए जहर कातिल है और बदकिस्मती से हमारे इलाके में भी इसका इस्तेमाल रोज बरोज बढ़ रहा है और नौजवान नस्ल इस जहर के इस्तेमाल से दिन ब दिन अपनी जिंदगी को न सिर्फ बर्बाद कर रही है बल्कि वालिदैन के लिए भी परेशानियों का सबब बन रही है। मनशियात के जहर से अपनी नस्ल को महफूज बनाने के लिए इस्लाही कमेटी और यूथ वेलफेयर कमेटी ने सबसे पहले ज़िले इंतजामिया के साथ मुतअद्दिद बार तफसीली मुलाकातें की। बादशाह नौजवानों में शऊर बेदार करने के लिए इंतजामिया और सिविल सोसाइटी के ताउन से वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया। सेमिनार में जिला इंतजामिया के अफसरान समेत आवाम इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुकर्ररीन ने मनशियात के जहर से मुआशरे में पैदा होने वाली खराबियों से आवाम को आगाह किया। ताहम हम ये समझते हैं कि मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस नासूर को जड़ से खत्म करना होगा, जिसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़े जाएंगे। हमें आप लोगों के ताउन की अशद जरूरत है। गर्ल्स इंटर कॉलेज कोइया में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए महकमा तालीम के आला अफसरान और हुकूमती अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें की गयी। खाई गला जो के हल्का 3 का मरकज है, बदकिस्मती से यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके बायस वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अक्सर वालिदैन महंगाई के इस दौर में डिग्री कॉलेज न होने के बायस अपने बच्चों के भारी तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी तालीम अधूरी रह जाती है। डिग्री कॉलेज के क़याम के लिए इस्लाही कमेटी और यूथ वेलफेयर कमेटी रोज़े अव्वल से कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। महकमा बरकियात के मुतल्लिका छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को रावला कोट जाना पड़ता था, जहां पर लोगों को माली अखराजात के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता था।
इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए इस्लाही कमेटी और यूथ वेलफेयर कमेटी ने खाई गला मरकज के लोगों के साथ मिलकर सब डिवीजन बरकियात के हसूल के लिए तहरीक की। अल्हम्दुलिल्लाह आज खाई गला में सब डिवीजन बरकियात मौजूद है और बिजली के हवाले से लोगों के काम काज हो रहे हैं। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट कोट मीरपुर के ताउन से बेवा और बेसहारा खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए सिलाई मशीनें मुहैया की गयी। माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गयी। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई के पिसे हुए मजबूर और लाचार अफराद को खुशियों में शरीक करने के लिए कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट कोट मीरपुर और कोइयां ओवरसीज के ताउन से हर साल लाखों रुपए मालियत का ईद पैकेज दिया जाता है। नीज ईद कुर्बान के मौके पर भी जरूरतमंदों और नादारों में कुर्बानी का हिस्सा भी उन लोगों तक पहुंचाया जाता है। नीज इमदाद देते हुए जिस चीज को सबसे ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है वो इज्जत नफ्स होती है, जिसका भरपूर ख्याल रखा जाता है। सर्दी का मौसम गरीबों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनता है। इन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम हैंड के ताउन से जरूरतमंद अफराद में गर्म बिस्तर और कपड़े तकसीम किए गए, जिनसे उनकी मुश्किलात किसी हद तक कम हुई। NRSP इस्लाही कमेटी और यूथ वेलफेयर कमेटी कोइयां के ताउन से खाई गला में एक कम्युनिटी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जो आज मरकज खाई गला से वाबस्ता तमाम समाजी तंजीमों के प्रोग्रामात होते हैं। नीज खाई गला शहर में डस्टबिन भी लगवाई गई और टाउन कमेटी खाई गला के लिए एक अदद मोटरसाइकिल रिक्शा भी लिया गया। इस्लाही कमेटी कोइयां और यूथ वेलफेयर कमेटी कोइयां ने मरकज ज़राअत के ताउन से माहौल को खुशगवार और सरसब्ज रखने के लिए दरख्त और फूल लगाए गए। कोरोना वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, जिससे करोड़ों अफराद मुतासर हुए। वबाई सूरत हाल से लोगों के रोजगार खत्म हुए और बेरोजगारी का तूफान बरपा हुआ, जिससे गाँव कोइयां के अफराद भी मुतासर हुए। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए इस्लाही कमेटी कोइयां और यूथ वेलफेयर कमेटी कोइयां ने गाँव कोइयां के अंदरूने बरूने ममालिक मुकीम मुखय्यर हजरात से अपने भाइयों की माली इमदाद की दरख्वास्त की। इस पर अहले आने कोइयां ने दिल खोल कर माली इमदाद की और तकरीबन 10.5 लाख रुपए की खतीर रकम जमा हुई, जिससे गांव के जरूरतमंद अफराद की माली इमदाद की गई। वो कौमें हमेशा ही अरूज पाती हैं जो अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने असलाफ की लाजवाल कुर्बानियों का इदराक है और हम हमेशा अपने मोहसिनों को याद रखेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को उनकी कुर्बानियों से रोशनास करवाते रहेंगे। गाँव कोइयां के ऐसे अफराद जिन्होंने अपने दौर में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए एक छोटी सी कोशिश की और एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम गर्ल्स इंटर कॉलेज कोइयां के हॉल में किया गया, जिसमें उन्हें फख्रे कोइयां अवार्ड से नवाजा गया। इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और गांव के ऐसे अफराद जिनकी किसी भी शोबा में नुमाया खिदमत हों, उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए उन्हें फख्रे कोइयां अवार्ड से नवाजा जाता रहेगा। गाँव कोइयां के होनहार तलबा व तालिबात के लिए गाँव की एक मुखय्यर शख्सियत खलील अहमद हबीब एडवोकेट के ताउन से अवार्ड का एहतमाम किया गया। हमें आज ये ऐलान करते हुए भी मुसर्रत महसूस हो रही है कि गाँव कोइयां के ऐसे तलबा व तालिबात जिन्होंने शोबा तालीम में नुमाया कामयाबी हासिल की, उन्हें भी फख्रे कोइयां अवार्ड से नवाजा जाएगा। नौजवान किसी भी मुआशरे का एक अहम जुज होते हैं। एक सेहतमंद नौजवान ही मुआशरे का बेहतरीन फर्द बन सकता है। इस्लाही कमेटी और यूथ के ताउन से नौजवानों में सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स मुनक्कद किए गए और मुख्तलिफ ग्राउंड्स की तामीर में माली ताउन किया गया। इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियों का आइंदा भी एहतमाम किया जाएगा ताकि नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार होने से महफूज रहे। आज के दौर में हम समझते हैं कि तालीम एक ऐसा जेवर है जिसके बगैर मुआशरा खुशहाली की तरफ गामजन नहीं हो सकता। महंगाई के इस तूफानी दौर में जहां गरीब अफराद अपने अहले खाना के लिए बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मुहैया करते हैं, बच्चों की तालीम उनके लिए ख्वाब बनकर रह गई है। ऐसे अफराद की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए उनके बच्चों के तमाम तालीमी अखराजात पूरे किए जाते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर अपने खानदान का सहारा और मुआशरे में बाइज्जत मुकाम हासिल कर सकें। हर साल गाँव के तलबा व तालिबात को किताबें, कापियाँ और स्कूल यूनिफॉर्म मुहैया किया जाता है, जिसमें खुसूसन बैरून मुमालिक गाँव कोइयां के नौजवानों का कुलियती किरदार होता है। मसाइब खान शहीद रोड, जिसका सर्वे मुनासिब न था और आए रोज छोटे मोटे हादसात रूनुमा होते रहते थे और ये खतरा हर वक्त दामने गिर रहता था कि किसी भी वक्त
कोई बड़ा हादसा रूनुमा होगा जिससे कीमती इंसानी जानों के ज़िया का अंदेशा था, जिस पर मुतअद्दिद बार यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुलाकातें की गई और मुतबादल जगह के हसूल के लिए कोशिशें की गई। उस वक्त के चांसलर सदर आजाद कश्मीर सरदार याकूब खान ने तहरीरी इजाजत भी दे रखी थी, मगर उसके बावजूद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हमारे इस जायज मुतालबे को मानने से इनकार किया, जिस पर अहले कोइया ने मुतबादल रोड की निकासी की, जिसकी पादाश में अहले कोइया के 11 अफराद पर FIR हुई, जो साल हर साल अदालतों का चक्कर काटते रहे। गांव कोइया के ऐसे अफराद जो पेचीदा अमराज का शिकार थे और उनके माली हालात ऐसे न थे कि वो हॉस्पिटल्स के भारी अखराजात बर्दाश्त कर सकते, ऐसे अफराद के लिए इस्लाही कमेटी और यूथ ने अंदरूनो बैरूने मुमालिक बरादरी के ताउन से उनकी माली इमदाद की, जिससे उनका इलाज मुआवजा मुमकिन हो सका। 2005 के जल्जले में जब अहले कश्मीर बेसरो सामानी की हालत में थे, उस वक्त पूरी दुनिया ने अहले कश्मीर की भरपूर मदद की। ऐसे में जब पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों ने उनको बेसरो सामान किया, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उनके शाना बशाना खड़े रहें। इस्लाही कमेटी और यूथ वेलफेयर कमेटी कोइया ने बरादरी के ताउन से न सिर्फ उनकी माली मदद की, बल्कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी मुहैया की। शोहदा किसी भी कौम के मोहसिन होते हैं, जो अपनी आने वाली नस्लों की बका और वतन अजीज को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए अपना लहू वतन पर निछावर करते हैं। उन्हीं शोहदा के गर्म लहू के नतीजे में आज हम आजादी का सांस ले रहे हैं। 1947 में 2 थान के मुकाम पर डोगरा फौज के खिलाफ मार्के में जवां मर्दी के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले गांव कोइया के अजीम सपूत सरदार मसाइब खान शहीद और मुख्तलिफ मार्कों में जामे शहादत नोश करने वाले गांव कोइया के दीगर शोहदा जिनके मज़ारात दन्ना कोइया में हैं, उनकी यादगार तामीर करने के लिए सरदार मसाइब खान शहीद वेलफेयर ट्रस्ट ने बेड़ा उठाया, जिसमें इस्लाही कमेटी कोइया और यूथ वेलफेयर कमेटी कोइया ने उनकी भरपूर मुआवनत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मज़कूरा कोशिशों से डन्ना कोइया में एक अजीम शान यादगार तामीर हो चुकी है और हर साल वहाँ शोहदा को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए प्रोग्रामात होते हैं। इस्लाही कमेटी कोइया और यूथ वेलफेयर कमेटी कोइया हर साल 29 अगस्त यौम शोहदा 2 थान के मौका पर अपना भरपूर किरदार अदा करती है और आइंदा भी इंशाल्लाह करती रहेगी। इस्लाही कमेटी कोइया और यूथ वेलफेयर कमेटी कोइया के ताउन से खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए कारी उमर हयात मरहूम सलाई एंड कढ़ाई सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जिसमें माहिर इंस्ट्रक्टर्स की जेर निगरानी मशीनी सिलाई, हाथों से कढ़ाई और दीगर घरेलू मसनूआत तैयार की जा रही हैं। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अपर कोइया नज़द ईरो की बिल्डिंग जो जल्जला 2005 में तबाह हो गई थी, जिसके दरवाजे, खिड़कियां, पत्थर और दीगर कीमती सामान गायब हो गया था। मुतअद्दिद बार मज़कूरा स्कूल की हालत ज़ार के बारे में न सिर्फ महकमा तालीम को आगाह किया गया, बल्कि स्कूल के हवाले से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर भी भरपूर आवाज उठाई गई, मगर महकमा तालीम के जिम्मेदारान के कानों पर जूं तक न रेंगी, जिस पर इस्लाही कमेटी और यूथ वेलफेयर कमेटी ने ये फैसला किया कि मज़कूरा स्कूल को नाएलाम करके इससे हासिल होने वाली रकम को मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल की नई इमारत, जो कि महकमा तालीम की अदम तवज्जही की बाइस तबाह हो गई थी, उनकी मुरम्मती की जाए और दोबारा काबिल इस्तेमाल हालत में लाया जाएगा। इस हवाले से गांव कोइया की मसाजिद में ऐलान करवाया कि अवाम इलाका की मौजूदगी में बोली लगाई गई है और सबसे ज्यादा बोली दहिंदा को तबाहशुदा स्कूल की बिल्डिंग हवाले की गई और हासिल होने वाली इस रकम से गर्ल्स मिडिल स्कूल अपर कोइया और प्राइमरी स्कूल की मुरम्मती की गई। इस्लाही कमेटी कोइया को अपने कयाम से लेकर अब तक तकरीबन 200 से जायद मुख्तलिफ तनाज़ात के हवाले से दरखास्तें मौसूल हुई। इनमें बहुत से लोग साल हर साल से अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, ताहम वक्त और पैसे के जाया के सिवा उन्हें कुछ हासिल न हुआ। तमाम दरखास्तों के फैसले मेरिट और इंसाफ के तकाजों को सामने रखते हुए किए गए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि आज वो सब लोग इस्लाही कमेटी के फैसलों की वजह से भाईचारे और प्यारो मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। 2009 से 2024 तक
इस्लाही कमेटी और यूथ वेलफेयर कमेटी ने दस्तयाब रिकॉर्ड की रोशनी में कारकर्दगी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर दी है। इस्लाही कमेटी और यूथ वेलफेयर कमेटी ने अपनी इस्तात के मुताबिक जो काम किए वो आप अहबाब के सामने रख दिए गए हैं। ये सब कुछ आप बरादरी के ताउन से ही मुमकिन हुआ, जिस पर हम दिल की अमीक गहराइयों से आप तमाम अहबाब के मशकूर हैं। बशर होने के नाते इसमें गलतियाँ खामियाँ जरूर होंगी, जिसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। तमाम बरादरी से इल्तिमास है कि इदारे की मजबूती और बेहतरी के लिए अपनी रहनुमाई जारी रखें। आपकी तामीरी तनकीद से इदारे में मजीद बेहतरी और जिद्दत आएगी, जो गांव कोइयां के मुफाद के लिए जरूरी है। आखिर में इस्लाही कमेटी कोइयां और यूथ वेलफेयर कमेटी कोइयां के जो मेंबरान इस दारे फानी से कूच कर गए हैं, हम गांव के लिए उनकी खिदमत को खिराजे अकीदत पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। गांव के जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहत कामला अजला अता फरमाए और हम सब का इत्तेफाक व इत्तेहाद बरकरार रखे और हमारे अंदर खिदमत खल्क व इस्लाह व अहवाल के जज्बे को कायम व दायम रखे। आमीन। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। शाया करदा शोबा नशर व अशात इस्लाही कमेटी कोइयां, यूथ वेलफेयर कमेटी कोइयां।